Did we complete this equation of motion using the calculus method? ये हो गए थे तुम्हारे क्लास में? नहीं सर, Yes नहीं or हुआ। no? Okay, so this is the short No. example 3. Okay, we'll do it now. Short example 3.3 है. Obtain the equations of motion for constant acceleration using the method of calculus. Earlier we had done it with the method of graphical method से किया था, slope and area से, है ना? Do you remember that? Now it is done with the calculus. With the calculus method, there is the advantage, even if acceleration is not constant, then also the problem can be solved. अगर acceleration constant नहीं है, then also, and acceleration constant है, then also. Acceleration constant है, we are going to get the same results, same equation. If acceleration is not constant, then we have to solve it. Without equation, we can solve it. So let's see now. First, since पहली equation निकालने के लिए we are going to use acceleration is equal to dv by dt. ठीक है? अभी हमें velocity का relation निकालना है. What should be the next step? बोलो. We are going to derive the relation v is equal to u plus at. बोलो. Let me just ask you. Everybody has that completed his notebook, or they have made the separate notebook for physics. सबकी separate notebook है. Physics का अलग से लिख रहे हो सब लोग? सर हाँ सर। Writing the notes is very important. I am telling you, it is going to help you for next 2 years. उसको अच्छे से लिखो separate notebook में, and I'll check it when parents meeting is there. Then I will ask you to bring that notebook. इसीलिए I give you the time to note down. It is not that just you are only observing and just you cannot remember these things all. Moment the more topics are covered, you will start forgetting everything. Better write notes and keep revising the things. Notes बनाओ और उसको बार-बार revise करो, then only things will be remembered, otherwise you'll keep forgetting. ठीक है? तो चलो देखते हैं derivation. A is equal to dv by dt. तो v का relation कैसे आएगा बोलो? What to do next? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर dt उस तरफ लाओ। dt को dv को एक तरफ, a dt है ना, राइट? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, dv वन साइड, dt विल कम ऑन अदर साइड. इसके बाद इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. तो dv इंटीग्रेशन का साइन लगा लेंगे. a कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लिया. नाउ एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड, जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी u है. लिमिट देखो कैसे लगा रहा हूं, व्हेन टाइम इज t वेलोसिटी इज v. ठीक है? नाउ dv का इंटीग्रेशन v आएगा. लिमिट जो है u से v तक जाएंगे, इज इक्वल टू a बाहर है, dt का इंटीग्रेशन t आएगा, लिमिट 0 टू t. ठीक है? अभी लिमिट लगा देंगे, यहाँ पर v आ जाएगा माइनस u, ये v माइनस u हो गया, और यहाँ पर t माइनस 0. ऐसे आएगी लिमिट जब लगाएंगे, t माइनस 0 आ जाएगा, बाहर a है तो a t बचेगा. ठीक है? तो u को इधर भेज देंगे तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. v का इंटीग्रेशन देखो, ये v आ गया था, यहाँ पे u आएगा, सॉरी ऊपर v आएगा, तो एक बार v माइनस u, तो v माइनस u आ जाएगा ये. ठीक है? जिनका इंटीग्रेशन नहीं हुआ है उनको दे कैन जस्ट स्किप बाय द टाइम, अदरवाइज दोज हु हैव डन इट उनके लिए इजी है ये. ठीक है? मैथ्स में वैसे भी कराया जाएगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, देन थिंग्स बिकम इजी, अदरवाइज
वी विल सी, है ना, बीच में कभी इंटीग्रेशन का लेक्चर लेंगे तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आ गया। दिस इज हाउ इंटीग्रेशन से आ गया। अभी पहले कैसे निकाला हम लोगों ने, स्लोप से निकाला था, वी डिड इट विद द स्लोप, नाउ इंटीग्रेशन। सर एक क्वेश्चन है, यस, तो स्कूल में से मतलब अगर प्रूफ आया तो स्पेसिफाई करेंगे क्या कि इसके हाँ। इससे करके दिखाओ, उससे करके दिखाओ? if they specify you have to follow that, otherwise you can use any of the method। ओके सर। ठीक है, बट जनरली ग्राफ वाला मेथड इज प्रेफर्ड। इंटीग्रेशन में क्या होता है, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम जाती है तो दे डोंट रिस्ट्रिक्ट दैट की इंटीग्रेशन से करो, बट इट्स अप टू यू। second derivation is s is equal to ut plus half at square. How can we get that s is equal to ut plus half at square? बोलो। देखो v को हम dx by dt लिख सकते हैं ना, यहाँ से इस इक्वेशन से मिलेगा v can be written dx by dt, है ना। तो v को हमने since v is equal to dx by dt क्रॉस मल्टीप्लाई किया, dx will be equal to v dt। अभी v की वैल्यू ऊपर से पुट कर दीजिए, v is equal to u plus at into dt। तो अभी क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, इधर भी इधर भी। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं। आफ्टर टाइम t डिस्प्लेसमेंट हैज बिकम u। ये दोनों जो लिमिट होती है करस्पॉन्डिंग होती है, 0 पे पोजीशन का ओरिजिन पर और टाइम t पर s। अगर सपोज 0 पे ओरिजिन पर नहीं है तो वी हैव टू मेंशन, यहाँ पर अगर सपोज ओरिजिन से थोड़ा आगे है तो s नॉट लिख देंगे उसको। बट आइडियल डेरिवेशन करते हैं हम लोग, ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x लिमिट अपर लिमिट s लोअर लिमिट 0। तो 1 का इंटीग्रेशन x आ गया, अपर लिमिट s है और लोअर लिमिट 0, तो s माइनस 0 का s हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने s लिख दिया, यू कैन डायरेक्टली राइट s। अभी इसको दो पार्ट में कर लो, u को सेपरेट कर लो, dt को मल्टीप्लाई कर लो दोनों, u dt प्लस a कांस्टेंट है बाहर आ गया, और ये t dt। जस्ट वी हैव डन इट इन टू पार्ट्स। पहला u का इंटीग्रेशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो u भी कांस्टेंट है, इनिशियल स्पीड कांस्टेंट है। देखो u बाहर आ जाएगा, ओके यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ। देखो u बाहर आ जाएगा, t dt 0 से लेकर t तक, तो u नहीं t नहीं था, 1 है वहां पर, 1 का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0। तो ये u का ut हो जाएगा, यहाँ पे t स्क्वायर का t का क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2। तो t स्क्वायर बाई 2 को आगे लिख दिया, ये t स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 1 का t हो गया, यहाँ पे 1 है, u बाहर आ गया, 1 का t हो गया, और t का t स्क्वायर बाई 2, तो 2 को हमने आगे शिफ्ट करके लिख दिया। दिस इज द सेकंड डेरिवेशन व्हिच वी हैव डन इट। वन है, ठीक है। ऑलराइट, सर हम लोग अभी इससे कर क्या रहे हैं? इंटीग्रेशन हम, तुमने लेट ज्वाइन किया ना, यस सर, किसका डाउट है? 10 मिनट सर। फिर हम लोग कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलस से निकाल रहे हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 3.3, ठीक है। टाइम से ज्वाइन किया करो, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन पहले हमने ग्राफ से किए थे, और अभी हम लोग कैलकुलस से कर रहे हैं। ये सॉल्व एग्जांपल है एनसीईआरटी बुक का, उसको कर रहे हैं। तो यू कैन डू इट एनी बाय वन ऑफ द मेथड्स,
अगर तुम्हें डेरिवेशन आता है, यू कैन डू इट विद द ग्राफ until unless it is mentioned. ग्राफ से तुम भूल गए तो इससे कर सकते हो. सेकेंड डेरिवेशन हो गया. नाउ थर्ड डेरिवेशन. थर्ड डेरिवेशन के लिए एक्सेलरेशन का सेकंड फार्मूला. एक्सेलरेशन का एक फार्मूला हमने डिराइव किया था, 2 बार डिराइव किया इसको हम लोगों ने. सिंस ए इज इक्वल टू वी डी बी बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, dx इधर आ जाएगा a के साथ और ये वी डी वी. अभी हम इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ. जब x इज इक्वल टू 0 है उस समय स्पीड ओरिजिन पर है, तब स्पीड u है. जब डिस्प्लेसमेंट s हो गया तो उस समय स्पीड v हो गई. लिमिट्स a बाहर निकल लिया, कांस्टेंट जो था ना, या इसके बाद ये स्टेप है. और करके मैं इसको इधर लिख रहा हूँ. ओके, जस्ट आई एम राइटिंग दिस साइड. और a dx इज इक्वल टू वी डी वी. ठीक है, यहाँ पे. ओके, तो इसके बाद ये स्टेप है, फिर नीचे वाला स्टेप है. इसके बाद इंटीग्रेशन कर रहे हैं. ठीक है, तो नाउ 1 का x आ जाएगा, 1 का x हो जाएगा, अपर लिमिट x ऐसे तो as हो गया जी. अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 होता है ना, तो ऊपर वाली लिमिट नीचे यहाँ पे आ जाती है, बस उसके बाद और कुछ नहीं करना. ये v है तो v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा. अपर लिमिट, अभी v को अपर लिमिट से पहले रिप्लेस करेंगे, 2 को बाहर निकालेंगे हम. 2 को इधर ले आए हम लोग, 2 को इधर शिफ्ट कर दिया. यहाँ पे देखो ये 2 आ गया नीचे. अभी अपर लिमिट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये आ गया. 2 हैज बीन ब्रॉट दिस साइड. बस अभी साइड चेंज कर लेंगे, हमारा थर्ड रिलेशन आ जाएगा. u स्क्वायर को इधर भेज दिया हमने और फिर v वाला टर्म इस फॉर्म में लिख दिया. दिस इज द थर्ड रिलेशन. ठीक है, तो एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आल्सो. जैसे चलो मैं एक एग्जांपल तुम्हें करके दिखा रहा हूँ. ये देख लो, ये शॉर्ट एग्जांपल था एनसीईआरटी बुक का. दैट दे आर डन इट लाइक दिस. इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी जस्ट आस्क. जिनका इंटीग्रेशन नहीं हुआ उनको डिफिकल्टी होगी, बट अदर्स जिनका हो गया था तो वो कर सकते हैं दिस मेथड से भी और ग्राफ वाले मेथड से भी. ठीक है, ओके. इसमें आई वांटेड टू शो यू, देखो जैसे मैं ओके एक एग्जांपल इसका ले ही लेते हैं यहाँ पर कि क्या था वो. विद सपोज एक्स, सपोज इफ आई गिव यू, ओके जस्ट लेट मी क्लीन इट. सपोज ये क्वेश्चन एक बीच में लेते हैं हम लोग. इफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ऑब्जेक्ट कोई मूव कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन जो है a इज इक्वल टू 2t है. फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 2 seconds if initial velocity is 0. Okay, let me make this space first. चलो अभी we have got lot of space here. इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं. देखो, if we solve it, no, can we do it? Let me ask you. ये क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आ गया? Okay, now let me write it full question. देखो, question is this: if object moves, object start from left, with acceleration a is equal to 2t, find its velocity
after velocity at t is equal to 2 second. Velocity at 2 second. तो ये पार्ट तो मैं यहाँ करा रहा हूँ, इसका सेकंड पार्ट होमवर्क में ट्राई करना. तो जस्ट ट्राई योरसेल्फ. आई एम गिविंग यू 1 minute, then we'll solve it. Where t is the time, यहाँ पे जो है of course t is the time, you know that t is equal to 2 second लिखा है, t represents the time. Are you getting it? बोलो क्या आंसर आ रहा है. संस्कृति, आर यू गेटिंग द आंसर? अस्मा, क्या करेंगे नेक्स्ट? बोलो, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? ईशान, सर देर तुम लोग हो? वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड आई. आंसर देखते हैं क्या कैसे किया, ये बताओ, मेथड बताओ. सर पहले एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकाल दिया क्योंकि t इज इक्वल टू 2 दिया था. उसके बाद रेस्ट पे था तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड आ गई और फिर v इज इक्वल टू u प्लस at वाले फॉर्मूले में डाल दिया. ठीक है, चलो नेक्स्ट वन. हु ओके, आई कुड गेट यू. आंसर अभी चेक करते कितना आएगा, बट योर मेथड इज नॉट करेक्ट. हु इज नेक्स्ट? हु वांट टू एक्सप्लेन दिस मेथड? सर मैंने भी ऐसे ही किया. ओके, एक मिनट रुको, तुम्हारा आंसर लिख लो. तुम लोगों का 4 आया. सर 4 बोले ना आंसर. चलो और हाँ, बताओ. सर. Let me see. Let me get the answers first and method also. Then I am going to discuss. बोलो और कोई. Anybody want to say? Vanshika, you want to? Could you get any answer? सर एक सेकंड सर, थोड़ा सोचने दो. सर हाँ बोलो. सर मेरा 8 आया. नहीं, मैं शाश्वत. 8 आया. 8, हाँ शाश्वत का 8 आया. चलो ओके. और 8 आया. क्या 8 आया? किसका? अर्जुन का? मेहुल. मेहुल का 8. कैसे किया मेहुल? सर a is equal to v minus u by 2 किया. अच्छा, तो a का वैल्यू 4 आया, फिर 2 मल्टीप्लाई किया तो नहीं 8 और v minus तो तुम लोग सेम मेथड से कर रहे हो तो तुम लोग अलग अलग क्यों आ रहे हैं? ओके चलो, मैं ठीक है, मैं और का लिखता हूँ पहले. a is equal to v minus u by t, है ना? तो a कितना पुट कर दिया तुमने? 2t. u 0 है ना, t, तो v is equal to 2t स्क्वायर बोले ना. तो ये मेथड से तो तुमने भी किया. ईशान, हाउ योर आंसर इज कमिंग डिफरेंट? 2 हाँ, सर स्क्वायर 8 गलती से 4 लिख दिया. Calculation सर पहले उसने अच्छा. एक्सेलरेशन निकाला. हाँ, मैंने फिर और पहले एक्सेलरेशन वाली डाल दी. ठीक है. हाँ तो पहले भी एक्सलेशन निकालेंगे तभी भी हो जाएगा ना. 4 आएगा ना, फिर 4 into t 80 आना चाहिए. बट 8 इज द राइट और रॉन्ग, आई डोंट नो. तुमने कैसे किया शाश्वत? सर मैंने वो इक्वेशन ऑफ मोशन डाला, v is equal to u देखो plus ओके, 80. चलो चलो लेट मी एक्सप्लेन यू. इक्वेशन ऑफ मोशन कैन नॉट बी यूज्ड डियर. हम लोगों ने क्या लिखा है? इक्वेशन ऑफ मोशन इज फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट. ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या ऑल द टाइम? नहीं. No, नहीं, it is sir. not. Therefore, equation of motions fail हो जाएंगे यहाँ पर. ठीक है, तो यही हमने लिखा था. This point I wanted to highlight. Advantage of this method is it can be used for non method. मतलब हमें केवल इतना ही यूज करना है. Beginning method मतलब ये यहाँ से स्टार्ट करना है. Method मतलब हमें we should know the method of solving. So now things are changed, so we will also change the things. ठीक है, चलो ये 8 आया, बट दिस इज नॉट द करेक्ट मेथड. आंसर आई डोंट नो क्या आने वाला है, बट दिस इज सडनली नॉट द करेक्ट मेथड. क्योंकि अगर मैं वैल्यूज चेंज करूंगा टाइम का तो फिर आंसर विल नॉट मैच. एक बार तो मिस्टेक्स मैच हो सकता है, बट करेक्ट मेथड देखते हैं. चलो
Okay. See, v is equal to, okay, acceleration is given. Acceleration is equal to dv by dt. मेथड वो हम फॉलो करेंगे ऊपर वाला. We'll follow the method, but not the end result. End result will be different but different acceleration. तो dv, okay, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. dv एक तरफ, adt एक तरफ. ठीक है. ऑलराइट. तो अभी नेक्स्ट फिर से सेम मेथड, कीप ऑन फॉलोइंग सेम मेथड. इसके बाद क्या किया था हमने? लिमिट्स एंड इंटीग्रेशन एंड लिमिट्स, इंटीग्रेशन एंड लिमिट्स लगाई. यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो वी कैन नॉट टेक इट आउट. ठीक है. dv इधर आ गया, एक्सेलरेशन विल रिमेन इनसाइड द इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन के बाहर कौन आ सकता है? कांस्टेंट वैल्यूज. ठीक है. ओके. नाउ ओके, ठीक है. नेक्स्ट स्टेप में अभी लिमिट हम नहीं लिख रहे, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे. ए की वैल्यू कितनी दी है? ए इज गिवन 2t. vt. 2t. तो सॉरी 2t सॉरी, हाँ 2t पुट कर देंगे. we'll put it 2 into t. 2 is constant, that can be taken out. ठीक है. तो next one more step, 2 को बाहर निकाल लिया, t dt. now limits. at t is equal to 0, velocity is 0. at t is equal to 2 second, ऊपर वाली लिमिट 2 सेकंड है. t is equal to 2 seconds, velocity is to be found out. let velocity is v after 2 seconds. ठीक है. तो लेफ्ट साइड में तो v आ जाएगा. ये 2, t का इंटीग्रेशन बोलो. अगर कौन सा इंटीग्रेशन हम लोग लगा t square by 2. जिनको नहीं भी पढ़ा है ना, दे कैन डू इट बिकॉज रिपीटिशन है वो. x to the power n plus 1 up. okay, let me just take up the things. it will take hardly 2 minutes. जो लोगों का इंटीग्रेशन छूटा है, that they also can do it because these are the points again and again are being used. देखो रिवाइज करा देता हूँ इंटीग्रेशन का. जैसे x to the power n dx, मतलब x to the power n का इंटीग्रेशन करना, लिमिट a to b है ना, या 0 to ले लो या a से ले लो. तो x to the power n का इंटीग्रेशन n plus 1 अपॉन n plus 1. पावर बढ़ गई एक और नीचे भी जो वही टर्म आ गया, लिमिट a to b. तो n तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा n plus 1, x to the power n plus 1 a to b. अभी क्या बताया था मैंने? अपर लिमिट x की जगह माइनस लोअर लिमिट. पावर है, पावर तो कांस्टेंट है, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करते. जो भी है n1 2 3 4 होगा वो एज इट. तो x की जगह b to the power n plus 1 minus a to the power n plus 1. that's what we are going to use. now t का क्या हो जाएगा? t की पावर 1 है तो पावर एक बढ़ जाएगी, 2 हो जाएगी, नीचे भी 2 आ जाएगा. लिमिट 0 से लेकर 2 तक है. देखो ठीक है कि नहीं? देखो जस्ट यू कैन जस्ट सी वंस उसको. देखो फिर से सुनो. x to the power n कांस्टेंट है. x की जगह, x जनरल टर्म है, x की जगह x भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है और एक्सेलरेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. यहाँ पर जो x, यहाँ पर x है तो यहाँ भी dx होना चाहिए, यहाँ पर t है तो यहाँ भी dt होना चाहिए. ये मैच होना चाहिए. n इज कांस्टेंट. तो पावर बढ़ जाती है, वही पावर जो पावर है वो उसी से डिवाइड भी करना पड़ता है, बढ़ी हुई पावर से. कांस्टेंट होता है, ये बाहर आ जाता है, फिर अपर लिमिट लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट लगाते हैं. तो ये हम यूज कर रहे हैं. तो n की जगह 1 है. देखो t की पावर कितनी है? 1. तो 1 plus 1 2 हो जाएगा. यहाँ पर नीचे भी 2 आता है. अभी नीचे वाले 2 को तो बाहर निकाल लो. 2 by 2 पावर t स्क्वायर 0 से 2. तो ये तो 2 कैंसिल हो गया. ये 1 है. अभी लिमिट लगाओ. ये t की जगह 2 आ जाएगा, पावर एज इट इज, माइनस t की जगह 0 हो जाएगा, पावर एज इट इज. तो v इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, 2 मीटर पर सेकेंड. सॉरी 2 4 हो जाएगा. स्क्वायर है ना, 4 हो जाएगा, बाहर 1 है. देखो कैलकुलेशन देख लो एक बार, कहीं कोई टर्म छूटा तो नहीं. दिस इज द मेथड, करेक्ट मेथड ऑफ गेटिंग द. अभी इक्वेशन ऑफ मोशन फेल हो गई यहाँ पे बिकॉज़ नीचे 8 आएगा. कहाँ पे 2 छूटा है? 2 कैंसिल हो गया. सर टी स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं सही है, सही है. टी 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा. ठीक. तो what thing we have learned here? Kinematic equation fails because acceleration is not constant. Acceleration is time dependent. तो ऊपर हमने देखो, यहाँ पे देखो जस्ट
आई विल शो यू अगेन, जस्ट देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशन ऑफ मोशन है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो वी हैव टू जस्ट ए को बाहर नहीं ला सकते, देखो ए कैन नॉट बी टेकन आउट, ए विल रिमेन इनसाइड एंड इंटीग्रेशन विल बी डन। तो ठीक है, ओके आई एम शोइंग यू इन वर्टिकल पोजीशन, ऐसे देखो। नाउ सम मोर प्रैक्टिस इसके लिए। ओके, समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, आर यू देयर? तुम लोग हो लाइन पर? यस सर। हाँ सर। ओके एक मिनट, स्क्रीन नहीं चलेगी, मैं जस्ट आई विल अगेन शेयर द स्क्रीन। ओके स्टॉप, एक मिनट, कैन यू सी द स्क्रीन? Yes, sir. इज इट विजिबल? ओके विजिबल, ठीक है। यस सर। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा वन ऑफ द पार्ट्स। थोड़ा छोटा कर देता हूँ, देखो एक फुल व्यू यू कैन सी। संकेत, यू मेक दैट सेपरेट नोटबुक टुडे ऑनवर्ड्स और उसको लिखते जाओ और होमवर्क करके व्हाट्सएप पे भेजो मेरे ग्रुप में, ठीक है? Yes, sir. जैसा भी समझ में आए, यू सेंड इट। I am getting Yes, the sir. homework with very different method. I don't mind it unless you try. है ना? Try करेंगे, फिर I will correct it and send it back to you. यहाँ पे correction चाहिए। तो some of you are sending regularly, but कुछ लोग नहीं भेज रहे हैं regularly. Asma, you are not sending it nowadays. Keep sending it, even if I'm not responding, but I can see it. कभी-कभी मैं correction करके भेजता हूँ, कभी-कभी नहीं, but I'll see it. ठीक है? नेक्स्ट डे वी आर डिस्कसिंग इट, देन यू विल गेट द कहाँ पे मिस्टेक हो रही, क्या हो रहा। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. कैन वी फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड? सेकेंड पार्ट में दे दूं, थिंक अबाउट दैट डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड। इनिशियली इट वाज एट ओरिजिन, ये भी मेंशन करना पड़ता है, इनिशियल कंडीशन। तो सेकेंड पार्ट इज सिमिलरली ऐसे ही करना पड़ेगा तुम्हें। इतना नोट कर लो, फिर मैं लास्ट में दे देता हूँ होमवर्क के लिए। Find displacement at t is equal to 2 second, same value जो ऊपर ली हमने, if initially object is at origin, if initially origin and it is moving along the x-axis and one dimension motion है, it is moving along x-axis, ठीक है? This should be mentioned है ना, all the points should be mentioned in fact, and सब points correctly mention होने चाहिए, otherwise confusion होता है, ठीक है? तो अगेन ये x to the power n वाला फार्मूला, ओके जस्ट लेट मी आस्क यू, ये फार्मूला तो यूज हो गई x to the power n वाला, बट व्हाट एल्स? कहाँ से बिगिनिंग शुड बी वेयर? हाउ टू बिगिन विद? कैसे सर स्टार्टिंग वो करें? जो थर्ड वाला इक्वल टू सर, वो इक्वल टू 2t वाला इक्वेशन। फिर से वही प्रॉब्लम, कौन सी इक्वेशन बोलो? सर जो थर्ड वाला था ना, ये वाला वो v square is equals to u square plus 2as, उसको पूरा डिफरेंशिएट करके कर लेंगे। हाँ तो इसको इसका नाम ही नहीं लेना ना, ये वाई, ये तो हमें ये यूज ही नहीं कर सकते। ये फॉर्मूला यूज, हाँ मतलब ये डिराइव, मतलब ये बीच में वाले से से करेंगे। अच्छा, यहाँ से स्टेप चेंज करेंगे। हाँ बस इससे क्या आएगा? सर देखो X ना, मिल जैसे जाएगी। u ओके u ठीक है, ठीक। ओके यू है मोर देन वन ऑप्शन, इससे भी मेरे ख्याल से आ जाएगा और ये इससे भी आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा, दोनों से आ जाएगा। इफ यू डू ऑल द स्टेप्स करेक्ट, दोनों से सेम आना चाहिए। यू कैन डू इट विद मोर देन वन मेथड। आई थिंक टाइम दिया ना, तो टाइम के लिए ऐसे, इसमें टाइम नहीं दिया ना, तो इससे तुम फंस जाओगे, फिर टाइम नहीं दिया ना। अच्छा हाँ तो हो सकता है ये फर्स्ट पार्ट की हेल्प लेके तुम कर सकते हो, बट टाइम वाला तो इससे आ जाएगा।
सेकंड वाले थर्ड वाले मेथड से देयर में बी सम प्रॉब्लम, आगे मैं बोल नहीं सकता अभी, बट सेकंड वाले मेथड से इट विल बी। देखो ट्राई करो, इट इज फॉर प्रैक्टिस एंड we'll discuss in the next class. नेक्स्ट क्लास आई थिंक सैटरडे को क्या है, टीचर्स डे है, उस दिन छुट्टी रखने वाला हूं मैं, ठीक है ना। तो बट स्टिल आई एम नॉट, देखता हूँ बाकी क्लासेस का क्या सिचुएशन है, मे बी हॉलीडे, बट आई विल पुट इट इन द ग्रुप। रहा तो सबका रखेंगे क्लास, अदरवाइज एवरीबॉडी विल बी, सभी का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वर्किंग डे जो भी क्लास आएगा। तो ट्राई योर बेस्ट, है ना, एक बार में नहीं होगा। सर एक बार क्वेश्चन दिखा दो ना आपस से, यहाँ पे है ना सामने, find displacement at t is equal to 2 seconds if initially object is at origin and it is moving along the x-axis, ठीक है। यस सर हो गया। ठीक है, तो जैसा भी समझ में आए सॉल्व करके भेजो, जितना भी होता है। इफ इट यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट, नो प्रॉब्लम, whatever the steps you are writing, 2-3 स्टेप जो भी है, राइट इट एंड सेंड, और हो भी जाएगा फुल, ऐसा इतना डिफिकल्ट नहीं है, हो भी जाएगा। इफ यू ट्राई 2 times हो जाएगा। फिर ये हो गए थे क्वेश्चंस, these are questions we have done it, graph we have discussed। सर एक ये ग्राफ question- आपने बोले थे कि वापस समझाओ, वो जो ये वाला था क्या, था वो आपने बोले थे कि एक और बार ट्राई करो। कौन सा वाला, ये हाँ सर, ये वाले थे क्या, ये तुम्हारी क्लास में डिस्कस नहीं हुए क्या, इसको रैप कर दूंगा। हाँ सर। ओके, देखो ये थे, और ये भी मैंने ऐड किया, देखो कल, देखो दिस वाज द होमवर्क, है ना, ये वाला और ये वाला, है ना। तो सी हियर, जब ऑब्जेक्ट इज गोइंग अप, इनिशियली वेलोसिटी इज मोर, स्लोली कमिंग डाउन, आफ्टर द सर्टेन टाइम, आफ्टर सम टाइम इट इज कमिंग टू इंस्टेंटेनियस, ऐसे आएगा। हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, ये वेलोसिटी 0 हो गई, देखो वेलोसिटी हैज बिकम 0, यहाँ पे आगे देखो, ठीक है। तो इट स्टार्ट विद द हायर वैल्यू, फिर टाइम के साथ ऊपर जा रही है, जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट इज गोइंग अप, तो यहाँ पे स्पीड कम हो रही है उसकी, तो ग्राफ ऐसे आएगा, 0 हो गया आफ्टर सम टाइम, फिर वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है अपनी, कमिंग डाउन, वेलोसिटी इज नाउ इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव नीचे है, देखो इट विल कम, नीचे का ग्राफ माइनस, it will represent the minus velocity, this will represent the plus velocity, ऊपर का, ठीक है। but it is velocity, not the speed, ठीक है। जब टर्न करेगी नीचे आएगी तो ये नीचे चला जाएगा, ग्राफ नेगेटिव साइड में चला जाएगा, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ चुका है। नाउ स्पीड टाइम में क्या चेंज होगा, देखो स्पीड टाइम में अगेन बॉडी इज गोइंग अप, यहां तक चली गई, उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो गई, 0 हो गई हाईएस्ट पॉइंट पे, उसके बाद उसने डायरेक्शन चेंज की, नीचे आ रही है, तो स्पीड टाइम ग्राफ किधर जाएगा, ऐसे। इज इट ओके? नहीं What is सर, the wrong? स्पीड नेगेटिव नहीं होगा। What is the wrong with it? नेगेटिव नहीं होगा, तो it should be positive, तो इसको वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बढ़ाना पड़ेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्पीड पॉजिटिव है, नेगेटिव डायरेक्शन नहीं आएगा, ऐसे ही इट विल इंक्रीज, एंड जब वो ग्राउंड में आ जाएगी सेम स्पीड से हिट करेगी जिस स्पीड से फेंका गया था, बिकॉज एयर रेजिस्टेंस वी नेग्लेक्ट ऑल द टाइम, ठीक है। उसकी स्पीड देखो, यहाँ सपोज ये से यू आर थ्रोन इट से विद 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो धीरे धीरे कम हो गई, 0 हो गई यहाँ पे, फिर वो जब डायरेक्शन चेंज हो गई फिर से वो बढ़ के फिर से 40 हो जाएगी, यहाँ पे देखो। ऐसे मैंने इसमें एक और ऐड किया था, देखो डिस्प्लेसमेंट का डिस्कस हो गया था कल। डिस्प्लेसमेंट कैसे, पहले ऊपर गई डिस्प्लेसमेंट, स्पीड भी कम हो रही, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, फिर नीचे आ रही तो स्पीड बढ़ रही है और डिस्प्लेसमेंट 0 की तरफ आ रहा है, फिर 0 हो गया है। बट मैंने पूछा डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा फिर,
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो ये दिया है, एनसीईआरटी बुक में भी शायद है ये कहीं पर। डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं दिखता जनरली। हाउ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी देयर? यहाँ तक तो सेम है, स्पीड कम हो रही तो एंगल भी उसका कर्व भी बेंड हो रहा है इधर। इसके बाद क्या होगा आफ्टर दिस? हाईएस्ट पॉइंट पे आ गई, सर ऊपर ही जाएगा ग्राफ। स्पीड हाँ, इंक्रीज ये- होगी तो ऊपर हाँ, ही ये जाएगा। नीचे आ रही है, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है बट उसका जो है डिस्टेंस तो बढ़ रहा है और स्पीड भी बढ़ रही है, तो कर्व ऐसे चेंज हो जाएगा। अभी इस तरह से जब कर्व जाता है तो स्पीड बढ़ती हुई दिखा रहा है, और जब ऐसे आता है तो स्पीड कम